So what I wanted to talk today was not so much about my own achievements or what I have done in life, but what the country today can do and what we should be looking at. And when I talk about India, the theme I had mentioned to Hiranmay was about both how do we convert a calamity into an opportunity. So when I talk of India doing this, first I want to introduce India. And I'm saying that because I find that most of us do not seem to know our own country. हमारा देश जो है वो हजारों साल से विश्व में सबसे एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइजिंग देश रहा है. अब लगभग 300 साल पहले 25% of global GDP was contributed by India. Same as China. पूरे यूरोप का 25% GDP था. और वो GDP इसलिए था क्योंकि हम ऐसी चीजें बना रहे थे, हम ऐसी चीजें कर रहे थे, ऐसा इनोवेशन हम कर रहे थे कि पूरे संसार को उसकी जरूरत थी. यहाँ पे लोग हमें सिखाने नहीं आते थे, हमसे सीखने आते थे. ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इंडिया में थी. अब आजकल हम लोग कोलैबोरेशन सीख करते हैं फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज. आई वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इट वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट. हजारों साल पहले लोग नालंदा में पढ़ने आते थे बाहर से. तो because we had colonization, we lost a few hundred years and we lost our self-confidence. Policies changed and we went from being 25% of global GDP. At independence we were probably 5% of global GDP. और उस वक्त क्योंकि हम लोग we had lost our self-confidence, we thought कि हमको बिल्कुल अपना borders close कर देना चाहिए. We went into what I would call a license permit quota Raj. सिर्फ हम हर चीज लाइसेंस होती थी. तो उस वक्त जो भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में था, it was killed. Because to succeed, a businessman, all they needed to do is buy a license, then go abroad, buy a foreign collaboration, hire all their relatives and manufacture, because they could sell at cost plus. We made the worst cars in the world. When I was growing up, जब मैं स्कूल में था, तो उस वक्त सिर्फ 2 गाड़ी होती थी, Fiat, Ambassador. वर्ल्ड की वर्स्ट कार्स थी, पर 4 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी. So with this we went to bankruptcy. 1991 में we had to mortgage our gold so that we could avoid bankruptcy. और उस वक्त सबका ये अनुमान था, गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री में, कि हमको फोर्स किया जा रहा है to open up to foreign competition. Those were the conditions set by the global organizations. And we thought कि Indian industry जो है will not survive. All our companies will be acquired by foreign companies. आप लोग ने शायद, आप बहुत यंग हैं, आपने सुना नहीं होगा, बॉम्बे क्लब था, industrialists who thought that we should not open up क्योंकि हम लोग compete नहीं कर पाएंगे. सोचना सही भी था. Generally all countries that open up their economy, वो पहले open करते हैं to domestic competition, उसके बाद to global competition, जिसमें कि लोग थोड़ा पहले tough हो जाए. पहले प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद आप बॉक्सिंग रिंग में जाए. हमने उल्टा किया. रिजल्ट क्या था? हमारा जो पुराना डीएनए था वो रिसर्फेस करा. We used to make the worst auto components in the world. जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, and you went to spare parts dealer to ask for a repair, तो ये पूछता था कि आपको देसी चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए. देसी का मतलब था ये बेकार होगा, सस्ता होगा. वहां से today we have become the leading auto component exporters in the world. Today हम auto components बनाते हैं to the biggest luxury brands in the world. लोगों का जो
सोचना था कि फॉरेन कंपनी सब इंडियन कंपनीज को खरीद लेंगी, उसका उल्टा हुआ. We have been buying twice as many companies abroad than they have been buying in India. और हमने एक अपनी इंडस्ट्री नई बनाई, आईटी इंडस्ट्री, जो जिससे मेरा जुड़न थी. तो जब मैंने NASSCOM को फाउंड किया 1988 में, उस वक्त आईटी इंडस्ट्री was $50 million. इस वक्त ये इंडस्ट्री $200 बिलियन है. ये सिर्फ अमेरिका के पीछे है. We are ahead of every European country, Japan, China. सॉफ्टवेयर में कोई हमारे पास नहीं है, सिर्फ अमेरिकन है. और इंडिया में जो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उससे ज्यादा सिर्फ अमेरिका में. ये इंडस्ट्री जो है is not created by big industry. 99% of the companies are startups. Like me, all of us, हम हैं, नारायण मूर्ति हैं, अजय को आपने सुना, हम सब ने शुरू किया मिडिल क्लास फैमिली से. कोई बिजनेस फैमिली से नहीं शुरू करा. हम में से किसी के पास पैसे नहीं थे. I started my first company, 11 lakh. We took it public. It was in the UK. $800 million का रेवेन्यू था. उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री ने देखा हम लोग क्या कर रहे हैं. They got excited. We got a big pharma industry. And then we got I'll get some water also, sorry. और उसके पीछे क्लीन एनर्जी की भी इंडस्ट्री आ गई हमारे पास. एक के बाद एक इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ने लगी. तो आज मैं बात करना चाह रहा था कि भाई पहले तो आप लोग समझो कि हमारा देश है क्या. What is the strength of our country? What has been not very 5,000 year past. हम रामायण और महाभारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 300 साल की बात कर रहे हैं, जो historically is considered a very small period. So when I talk of disruption, for entrepreneurs, the biggest opportunity comes when there is a disruption. यदि disruption नहीं होता है तो जो established players होते हैं, they will continue to do what they are doing, they will win and you cannot dislodge them. जब rules of the game बदल जाते हैं, जब disruption होता है, तब opportunity create होती है. तो हम आपको simple example sport से दें. हॉकी में इंडिया used to always win a gold medal जब तक कि हॉकी ग्रास पे प्ले होती थी. जब यूरोपियंस ने चेंज कर दिया, उसको एस्ट्रोटर्फ बना दिया, तो इंडिया नेवर वन एन ओलंपिक्स आफ्टर दैट, क्योंकि रूल्स बदल गए. इंडिया का गेम जो होता था वो शॉर्ट पासेस होता था, क्योंकि ग्रास पे लंबे पास करना बड़ा मुश्किल है. एस्ट्रोटर्फ पे कोई दिक्कत नहीं है, गेम बदल गया. तो डिसरप्शन में अपॉर्चुनिटी बनती है. और इंडिया जो ग्लोबल इकोनॉमी का 25% कंट्रीब्यूट करती थी और आज स्ट्रगल कर रही है एंड इज नोवेयर नियर दैट नंबर. तो इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी है टू अगेन गो बैक टू वेयर इट वाज, अब आई है. और वो क्योंकि कोविड जो है बिगेस्ट कैलेमिटी इन द वर्ल्ड. लिविंग मेमोरी में तो ये सबसे ज्यादा है. मैं तो आई वाज बोर्न एट इंडिपेंडेंस, तो वर्ल्ड वॉर 2 तो मैंने देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी होगी. उससे बड़ा जो डिस्ट्रप्शन अभी हुआ है वो वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा है. और ये हर कंट्री को इम्पैक्ट करता है, कोई कंट्री इसमें बची नहीं है. और ये इसका इम्पैक्ट जो है वो किसी भी वॉर से कहीं ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि हर चीजें, वे ऑफ लिविंग, लाइफ, हर चीज इसमें बदलने वाली है. और अब क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन हाउ ईच कंट्री हैंडल्स इटसेल्फ इन दिस कैलेमिटी, इन दिस डिसरप्शन, ये डिसाइड होगा कि इस कोविड के बाद
रिलेटिव पोजीशनिंग कंट्रीज की क्या होगी। अगर जाते वक्त यूएस 1 था और चाइना 2 था और जापान और यूरोप वगैरह थे, एक रिलेटिव पोजीशनिंग थी। बट पोस्ट कोविड 5 साल बाद जो पोजीशनिंग होगी वो बिल्कुल फर्क हो सकती है, वो हमारे ऊपर है। और हमारे पास चैलेंज बहुत जबरदस्त है और यही अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज तो जबरदस्त है ही, मैसिव हेल्थ इश्यूज हैं, 1.3 बिलियन पीपल। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करें, इनकी हेल्थ कैसे करें, हाउ डू वी रैंप अप टू मेक श्योर वी कैन सर्व ऑल आवर पीपल। और उसी के साथ हमें देखना पड़ेगा, जब इतनी कॉस्ट्स आ रही हैं, कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे सरवाइव होने में भी मदद कर सके। तो किस तरह से हम हेल्थ इश्यूज भी देखें और इकोनॉमी का सर्वाइवल भी देखें और उस पर हम फोकस करें। अपॉर्चुनिटी हमारी ये है कि यदि हम ये दोनों चीजें ठीक से कर सके, then we will position ourselves to engage much stronger relative to rest of the world after COVID. तो इसमें 2-3 चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये है कि इसमें हमारी कई सारी रियलाइजेशंस हैं, कई लर्निंग्स हैं। एक तो ये है कि हमेशा कहा जाता था, सब लोग कहते थे कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर is not up to the mark. And now we are realizing that actually it needs a massive upgrade. इस पे बहुत काम होना है। तो एक तो ये हमारा बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है और उस पे सरकार, प्राइवेट सेक्टर सब जुड़े हुए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसमें मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा क्योंकि उस पे तो बहुत कहा गया है, आर्टिकल्स हैं, डिस्कशंस हुए हैं। सेकेंड थिंग वी आर फाइंडिंग, इसकी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है इंडिया में, मेक इन इंडिया का डिजायर, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो सप्लाई चेन्स हैं जिनसे मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करता है, वो बहुत डिपेंडेंट हैं ऑन कंट्रीज अब्रॉड, पर्टिकुलरली चाइना। हम कोई भी मशीन, कोई भी चीज हो, कोई भी ड्रग हो, कुछ बनाना हो, उसके लिए हमें चाइना से कुछ चीज की जरूरत है। इंटरमीडिएट्स के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कुछ मैकेनिकल, हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं। और इसमें ये दिक्कत है कि व्हेन यू कम टू अ सिचुएशन लाइक टुडे, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, उसमें तो ये है कि वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन ट्रबल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट, तो लोग मदद कर देते हैं। इस वक्त एवरीबडी इज इन ट्रबल, एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। तो इस वक्त जब हम लोग को जरूरत पड़ रही है, तो वी आर फाइंडिंग कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन ओवरसीज सप्लाई। चाइनीज कंपनी जो है, कई केसेस में दे आर refusing to supply parts to us because they are selling it to the United States, which is paying them more. Many cases, prices are being doubled and trebled. तो अगर हमको इस तरह की सिचुएशन से डील करना है, और ये सिचुएशन बाद में भी आ सकती है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पैंडेमिक तो फिर भी हो सकता है, तो हमको जो प्रधानमंत्री ने कहा था आत्मनिर्भर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। What he had said about Atmanirbhar is very, very critical. That हमको जो अपनी मेक इन इंडिया सप्लाई चेन्स वगैरह हैं, they should work also domestically. तो हम ये नहीं कि हम बाहर से चीजें ना लाएं, पर अगर वो ना अवेलेबल हो तो हमें करना पड़ेगा। और हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क इसमें इतना ट्यून्ड नहीं थी, वो हमको चेंज करना पड़ेगा।
कई सिचुएशंस हैं where there are hospitals in India, leading hospitals, जिनको की वेंटिलेटर्स प्रोवाइड हो रहे थे फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, 20-30 साल से। उन्होंने बोल दिया कि भाई आई एम सो सॉरी, अब हमको यहाँ पे जरूरत है, वी कैन नॉट सप्लाई। तो हमको कई चीजें करनी पड़ेंगी, पॉलिसी फ्रेमवर्क देखना पड़ेगा, हमारे सप्लाई सिस्टम में, टेंडरिंग में प्रेफरेंस है फॉरेन गुड्स की, वो चेंज करना पड़ेगा, जहां जहां करप्शन है प्रोक्योरमेंट में वो चेंज करना पड़ेगा, पर ये हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये कई चीजें जो है, we have become aware of these things that we need to change. On the other hand, there are many positives, very many positives. तो पहली चीज ये है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है is very strong, and that has been a big boon for India, क्योंकि बहुत कंट्रीज में शॉर्टेजेस हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। All of us are getting all the medicines that we want. सेकेंड हमारा एडवांटेज ये है कि 5 साल पहले पीएम मोदी ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। ही लेड इट फ्रॉम द फ्रंट, स्ट्रॉन्ग फोकस। पहली दफे था कभी भी इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया में कि स्टार्टअप्स पे, एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस आया, और उसकी वजह से टुडे वी आर नाउ द थर्ड लार्जेस्ट and most active startup ecosystem in the world. And we are very fortunate कि ये हम लोग ने पुश किया था 5 साल पहले, क्योंकि यही स्टार्टअप इकोसिस्टम अब जो है वो हमारे काम आ रहे हैं, और आपको बताएंगे उसी टाइम में। और इंक्यूबेटर्स पे बड़ा फोकस किया था, उसका भी बहुत फायदा है। जहां हमारे 10-20 इंक्यूबेटर्स होते थे, अब हंड्रेड्स में हैं। हर आईआईटीज में इंक्यूबेटर्स हैं। आईआईटीज दोनों इंजीनियरिंग और मेडिकल इंक्यूबेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस हो गया। जैसे स्टार्टअप मूवमेंट था, वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने बायरैक के थ्रू एक फोकस किया बायोटेक के इनोवेशन पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट 5 साल में जहां पे हमारे यहाँ बायोटेक वो 0, वी नाउ हैव अ फिनोमिनल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो कि ग्लोबल इनोवेशन कर रहे हैं इन द होल एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और भी पॉजिटिव्स हैं। इतनी बड़ी नीड हमारी हुई, उसके लिए गवर्नमेंट हैज रिएक्टेड विद सच स्पीड कि many people in government also are surprised कि अरे हम इतना तेज काम कर सकते थे क्या। सब लोग प्राइवेट सेक्टर यूज्ड टू ब्लेम गवर्नमेंट फॉर बीइंग स्लो, ब्यूरोक्रेटिक। दैट हैज चेंज्ड वेरी क्विकली। मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं आपको दूं कि देयर वाज अ स्टार्टअप इन बैंगलोर which called me. This girl had created a kind of test which could be done very quickly for COVID. She spoke to me, sent me her details, and I sent a mail to Amitabh Kant. I sent a mail to Dr. Renu Swarup, and I also sent it to the principal scientific advisor. तीनों के रिप्लाई हमारे पास आधे घंटे में आ गया। They all wanted to connect with this girl. और आपको अचरज होगा जब मैं आपको बोलूंगा कि ये मेल्स मैंने 7 बजे शाम को भेजे थे। So government itself is thinking कि भाई if we can operate like this, तो इसी को ही हम क्यों ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दें। दूसरी पॉजिटिव है जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आत्मनिर्भर कैंपेन। नाउ ये जो आत्मनिर्भर जो है, इसको वी शुड नॉट कंफ्यूज इट विद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वो तो 70s में था कि हम कुछ उसका जुगाड़ करके बना लें। ये आत्मनिर्भर वो चीज नहीं है।
ये आत्मनिर्भर जो हम बात कर रहे हैं इज लोकल बट ग्लोबल एंड वोकल फॉर लोकल। तो मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूं मैं क्या क्या कहना चाह रहा था। बट एक और पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट फंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बढ़ गए, स्पेशली कोविड के एरिया में। एक और पॉजिटिव चीज है कि जो स्टार्टअप्स हमारे हैं दे हैव रिजन टू द चैलेंज। सो टुडे वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर्स, chambers which can sanitize, PPE kits, all kinds of tests, vaccines, all हर तरह की चीजें बन रही हैं। There's a startup which is creating cornea, which is growing cornea, which can replace the cornea in your eyes. There's a medical device for incontinence. Liver की भी बात हो रही है। Big positive is कि हमारी IT industry जो है, being second to only the US, is very important for us. Because artificial intelligence का best use case is in healthcare. So for instance, एक startup है जिसको हम थोड़ा वेंडर कर रहे हैं, वो एक आपके फिंगर पे अपना कैमरा लगा के आप वीडियो लेके उनको भेज दीजिए 5 मिनट का, and they can tell you with 90% certainty that maybe you are positive for COVID. कोई टेस्ट नहीं है, through AI. There are measurables that are being done. For example, और लोग चीजें बना रहे हैं कि नर्सेज जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, बट दे कैन नॉट ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, दे कांट स्पीक द लोकल लैंग्वेज। सो नेचुरल लैंग्वेज किट किट्स बन रहे हैं कि नर्स नोज दोस 300 वर्ड्स एंड दे कैन बी ट्रांसलेटेड इन रियल टाइम। सेकेंडली, नाउ द थिंकिंग इज कि फ्यूचर में कुछ ईयर डाउन द रोड 90% हॉस्पिटल बेड्स हॉस्पिटल में आईसीयू होंगे, ओनली 10% जनरल, क्योंकि एडवांसमेंट इतने होंगे टेक में कि मोस्ट माइनर एलिमेंट्स लोग घर पे ही ट्रीट कर लेंगे, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए बहुत काम हो रहा है स्टार्टअप्स में कि हाउ डू यू क्रिएट सिचुएशन कि कोई घर पे बैठ के फोन के साथ, लैपटॉप के साथ उन्हीं कैपेबिलिटी से किसी पेशेंट को मॉनिटर कर ले जो कि आईसीयू स्पेशलिस्ट करते हैं। तो मेडिकल एरिया में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स आर वेरी वेरी एक्टिव, मच मोर सो इवन देन द बिग इंडस्ट्री। तो जो आत्मनिर्भर का मैं आपसे बात कर रहा था कि देयर आर 2 थिंग्स वी नीड टू डू। वोकल फॉर लोकल। कॉलोनाइजेशन की वजह से वी हैव डेवलप्ड kind of a view that something foreign is superior to something Indian. So we have a bias for procuring foreign goods. Hospitals, procurement agencies, also in government, favor something which is foreign. That needs to change because Indians are now making world-class quality things. It's not like the 70s. So we must buy local. That is vocal for local. But second is local but global. ये import substitution नहीं है, ये तो फॉरेन कंट्रीज में जो वो बना रहे हैं हम उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं with Indian goods. So we don't want to make just local. We want to make local but for global. So इसमें कई चीजें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, मेजर्स। हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है, मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हुई है क्योंकि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क ने उस पर फोकस नहीं किया, वो अब हो रहा है। एंड देयर इज नो रीजन फॉर अस टू इंपोर्ट एनीथिंग। एक्सरेज हैं, जितनी भी डिवाइसेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमको जरूरत नहीं है। हम वी कैन मेक बेटर, वी कैन मेक चीपर एट होम। सो policies are being created, they will be created,
that we can do. और जिस तरह से बायरैक ने बायोटेक में किया, वही हमें मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए. And I would say कि स्टार्टअप्स तो कर ही रहे हैं, but our domestic corporates, large companies, should also look at medtech, at medical equipment. And once the local supply chain is made, जब सब intermediates, जो पूरी supply chain की parts हैं, components हैं, इंडिया में ही मिलने लगेंगे, then a manufacturing industry will take off in all areas, in all segments. And in truly at that time, make in India, जो dream है PM Shri Narendra Modi ki, that will become a reality the moment we have a full domestic supply chain. तो हमारे लिए ये opportunity इतनी बड़ी क्यों है? Just want to say in closing कि why is this such a big opportunity? Okay, when the world emerges from COVID, it is not at all clear कि जो 6 महीने पहले सीक्वेंस और रैंकिंग थी कंट्रीज की वो इसके बाद होगी. ऐसा नहीं होगा. We can easily surpass China because it's not just a question of replacement. और मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा है कि like China, we have lower costs. Like the US and China, we have very large domestic markets, which means that we can have economies of scale in manufacture. सिर्फ 3 countries में है, US, China and India. US had higher costs, China had lower costs. We also have the large market and we have lower costs, but हमने अभी तक अपनी domestic market को पूरा leverage नहीं किया. आत्मनिर्भर में वो हो जाएगा. पर हमें एक और advantage है कि unlike China, we are trusted. China का इस वक्त image जो है globally is poor. People will not want to buy from China. It's not a trusted supplier, but we are a trusted supplier. So we can not only replace China, we can surpass China, we can move our positioning, use our own large domestic market, our world-class entrepreneurs, our more than world-class IT industry, one of the biggest pharma industries in the world. So if we can play our cards right, while this is a massive calamity, there will be a lot of pain, but we can emerge out of this much stronger than when we started. Thank you. हाँ, तो एक तो आपने एक पहलू रखा कि जो इकोनॉमिक की परसेंटेज था, आपने कहा कि 25% तक हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे, फिर बाद में फ्रीडम के टाइम में करीब 5% तक आया और अभी 3% तक आया. तो एक क्वेश्चंस में देख रहा था चार्ट बॉक्स पे, तो एक तो कल्चरल कॉलोनाइजेशन की आपने बात कही और आपने कहा कि हमने एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट का जो कर्व है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डिप कर दिया था. तो जो पोस्ट फ्रीडम जो एंटरप्रेन्योरशिप फिनोमेनन इस देश में हुआ है और खास करके पिछले 4 दशंधि में आपने काफी एक्टिव रोल प्ले किया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पोस्ट फ्रीडम पहले तो ऐसा कि पोस्ट जो बिफोर वी बिकेम अ कॉलोनी, हम लोग रॉ मटेरियल मंगाते थे एंड वी यूज्ड टू मेक द बेस्ट टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड. कॉलोनाइजेशन में वो रिवर्स कर दिया गया कि यहाँ से मटेरियल जाएगा और उसका मैन्युफैक्चर यूके में होगा और वो हम इंपोर्ट करेंगे. तो फ्लिप हो गया कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी आ गई, इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं है. तो वो हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया. बट जब हम फ्री हुए तो मैं ये कह रहा था कि while we started industries, but because we were scared of the world, हमारा वो लाइसेंस परमिट कोटा चलता था कि भाई जिसके पास जो बिग बिजनेसमैन है वही कुछ कर सकता है और उसको भी कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं थी.
क्योंकि मार्केट जो थी वो उसमें कोई कंपेटिटर्स अलाउड नहीं थे। तो ये जो बदला है पिछले मेरे ख्याल से 30 साल से 30-35 साल से, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे हैव फाउंड देमसेल्व्स अगेन। आईटी इंडस्ट्री में फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया कि 1988 में थी ही नहीं, 30 साल के अंदर $200 बिलियन, 25% हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक इंडस्ट्री से आता है जो थी नहीं, 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है। ये स्टार्टअप आप और हम जैसे लोगों ने इसको बनाया है। एंड आई विल शेयर विद यू दैट those of us who created the companies first, when we went abroad, so we didn't have self-confidence. We felt कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे तो maybe we can be as good as IBM or Accenture. And we were surprised when we found that actually we could be better. Self-confidence नहीं थी हमें. But that is not true today. आज जो हमारे youngsters हैं, they have self-confidence. The people who come to me today, I have funded over 100 startups. जो आज हमसे आके बात करते हैं, they have global ambitions. They have a lot of self-confidence. तो they can do anything. जिस तरह की मैंने आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताया, जो लोग यहाँ चीजें कर रहे हैं, growing human liver, cornea, finding artificial intelligence से ही वो टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो है। आजकल फंडिंग अवेलेबल है, एंजल इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारी तरह कई लोग हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हैं, बिन सक्सेसफुल, नाउ आर हैप्पी टू फंड यंगस्टर्स। उसका ग्रुप बनाया हमने, इंडियन एंजल नेटवर्क, और वो अब उसमें वी आर 500 पीपल इन दैट नेटवर्क। वी हैव बिकम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हम लोग स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। तो इस वक्त एंटरप्रेन्योरियल सीन बहुत एक्टिव है, और मुझे लगता है कि जो हमारी न्यू इंडिया जो है, इंडिया ऑफ टुमारो, ये आजकल के स्टार्टअप्स ही हमको वो प्राइम पोजीशनिंग बाहर जाकर देंगे। Wonderful. Saurabh ji, Raviraj Chauhan is asking a question to you. He says, I want to ask Saurabh sir, what are the key points to take care and noted by him before investing in startup as an investor? क्योंकि आपने 100 से ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट भी किए हुए हैं, तो क्या की पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं आप करने से पहले? की पॉइंट्स तो कई होते हैं। पहले तो देखते हैं कि भाई what is this product or what is this service? Is there a large market for it? Is there a large and growing market for this? और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका what is so special about it? How is it differentiated from competition? Why will it succeed? ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, इन्होंने पहले कुछ किया है, नहीं किया है, क्वालिटी क्या है एंटरप्रेन्योर की, व्हाई विल दे सक्सीड, उन पे क्या रेफरेंसेस आ रहे हैं, आर दीज एंटरप्रेन्योर्स विलिंग टू लिसन, थिंक, इज देयर अ टीम, इज इट जस्ट वन पर्सन? तो इसमें कई चीजें हम देखते हैं कि इसके सक्सेस के चांसेस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, चांसेस सक्सेस के क्या है। बट all these things are important. Size of the market, competition, also business plan क्या इन्होंने बनाया है। बिजनेस प्लान पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि वो तो स्प्रेडशीट है। बट बिजनेस प्लान में हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर, वो क्या क्या सोच रहे हैं बिजनेस प्लान बनाते वक्त। बट पर्सनली if I look at 10 things, 5 of them have to do with the founding team. If I like the team, then it's fine, because हम लोग क्या एक saying होती है कि an A-class team will make a success of a B-class idea,
and a B class team will make a hash of an A class idea. Eventually, depends कि आप किसको back करते हैं. In my own industry, you can see lots of people got in. Some have made it big, some have not. है ना? तो अलग अलग होता है. वंडरफुल सर, भूपेश याग्निक की तरफ से एक सवाल है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, बौद्धिक संपदा का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आगे की सिचुएशन में, और स्टार्टअप्स के लिए भी काफी बड़ा रोल रहेगा. चाइना कई बार इस चीज को डिसरिगार्ड करके अपने ही फ्रेमवर्क पे काम करता है, तो इसमें इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को क्या ध्यान रखना चाहिए और पॉलिसी लेवल पे क्या कर सकते हैं? पॉलिसी लेवल पे तो काफी काम हो रहा है. गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस. तो in the sense कि patents जल्दी मिल जाएं, वो सब जो है, government is working on that. But success is not only based on IP is important. In the many areas, medical technology where IP patents are very important. But a patent is useless unless there is a business reason for having that patent. Unless you can build a business, patent बनाने का कोई फायदा नहीं है. TCS के पास कोई patent नहीं है. Infosys के पास पे कोई patent नहीं है. ये services business. TCS is worth $100 billion. So patents, IP, हर चीज important है for some things, but eventually biggest single thing is innovation around creating a business. वंडरफुल. एक सवाल फेसबुक लाइव से है कि आप कभी कोई यंग स्टार्टअप, कोई कॉलेज गोइंग स्टार्टअप या यंग एंटरप्रेन्योर्स पे इन्वेस्ट करते टाइम कुछ ऐसे स्वीट मेमोरीज हो या कुछ सीखने को मिला हो? Somebody is saying, have you invested in young entrepreneurs at 20, 21? Loads of them. Any specific story that you would like to share? I'm trying to think. There's so many of them. It's not uncommon at all. It's not uncommon at all. And the only thing you have to caution them. See, because these are youngsters who have never run a company. They have not run a business unit. They may not understand difference between profit and loss and cash flow. इन्होंने किसी कंपनी में काम ही नहीं किया है, तो you need to guide them a little more, because it's not enough to just have a good idea. Good ideas are a dime a dozen. कई लोग सोते हैं तो सुबह 4 बजे नींद टूटती है तो हमको एक अच्छा आइडिया आ जाता है, but we don't do anything with it. So a good idea by itself is of no value unless you can convert it into something that is of value. And the thing that I counsel the most is that if you think you want to be an entrepreneur because you can make a lot of money, drop the idea. That is the worst reason to be an entrepreneur. If you become an entrepreneur to make money, you'll never make money. You must, being an entrepreneur is not easy, very challenging, very painful. You only hear, all of us only talk about the good times. None of us talk about the difficult times and the bad times. So this can be quite, there's no entrepreneur who's successful today, not one, who has not had some very bad times. क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, we know each other, आपको मैं बता रहा हूँ. So it is only worth it if you think you're going to do something that will change the world, that will have an impact on people's lives. कि आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिससे कि लिविंग बदल हो जाए, लोगों का health becomes better, their living becomes convenient, whatever it is, you have to do something that has high impact. That must be your dream. अगर वो dream नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. आप you should just open a shop and trade, buy cheap, sell high, उसी से पैसे बन जाएंगे. वंडरफुल. सर, भावनगर से एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, जो VUCA वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूटी, ये काफी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है आज की इकोनॉमी में. तो ये VUCA वर्ल्ड में, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस एनवायरनमेंट में
एंटरप्रेन्योरशिप में क्या ध्यान रखना चाहिए एक फर्स्ट टाइम फाउंडर को? पहले तो ये चीज है कि अगर इस तरह की वर्ल्ड नहीं हो तो एंटरप्रेन्योर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जैसे मैंने पहले बोला था कि the entrepreneurial opportunity is there only if there is disruption that allows you to unseat existing established players, है ना। अब देखिए, आप सोचिए कौन 100 साल पहले जो टॉप 100 कंपनीज थी उनमें से आज कौन है टॉप 100 में? शायद एक या दो हो। वो इसलिए क्योंकि जब डिस्रप्शन वर्ल्ड चेंज करती है तो नए प्लेयर्स आते हैं नए टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले जो बड़े थे जो पिक्चर ट्यूब्स बना रहे थे टीवी के लिए, ट्रांजिस्टर आए तो वो चले गए। तो इसी तरह से चेंज होता रहता है। जो पहले के बिग प्लेयर्स थे वो आईटी में भी कोई नहीं रहे। फेसबुक, गूगल, ये सब तो नए हैं, ये तो थे नहीं 20 साल पहले। सो एंटरप्रेन्योर के लिए वही सिचुएशन अच्छी है। एंड व्हाट ही शुड कीप डूइंग इज टू री इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड विल बी लाइक। आज जिस चीज की बहुत जरूरत है उसको बनाने से फायदा नहीं है। आप वो बनाइए जो आपको लगता है कि 3 साल में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 2-3 साल लगेंगे वो बनाने में। और आज जिस चीज की जरूरत है वो तो लोग बना ही रहे हैं। वंडरफुल। एक क्वेश्चन है, एक पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि आप सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कमेटी में भी थे, जहां ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और क्राउड फंडिंग और उन सब चीजों पे बात भी हुई थी, अर्ली स्टेज की क्रिएटिव आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। तो क्राउड फंडिंग को लेकर उन्होंने कुछ कोशिश भी किया था, अपने स्टार्टअप्स को रेज भी किया था। तो आपकी क्या सजेशंस हैं ऑल्टरनेटिव तरीका से अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स को फंड रेज करने के लिए? क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया में? इंडिया में तो आजकल बहुत पैसा है अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत एंजल ग्रुप्स हैं, एंजल्स हैं, वीसी फंड्स हैं। तो अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्राउड फंडिंग की प्रॉब्लम ये है कि क्राउड फंडिंग में सेबी का कंसर्न है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स क्राउड फंडिंग करने लगे जब उनको पता नहीं है, हाई रिस्क एसेट है, तो उनको चोट आ सकती है। और सेबी जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। Wonderful. Sir, one professor is asking, जब आपने नास्कॉम चालू किया है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एसोसिएशन चालू किया, तब आपने कहा कि 50 मिलियन भी नहीं था मार्केट और आज 200 बिलियन का है। तो शुरू में जब आपने, सो इट वाज लाइक अ स्टार्टअप फॉर यू, और उस टाइम पे इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का मतलब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इतना ज़्यादा अफ्लुएंट भी नहीं था। तो सबसे पहले आपने ग्लोबल कस्टमर्स को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि वो तो मेजर प्लेयर्स थे बाय करने के लिए? क्या कहानी थी? पहले तो ये था कि हमारे पास चॉइस नहीं थी। देयर वाज नो इंडियन मार्केट। इंडिया में उस वक्त सोशलिस्ट थिंकिंग थी, computers create unemployment, so there was no domestic market, so we had to go overseas. और it was not easy, it was not at all easy, क्योंकि वहाँ लोग यही पूछते थे कि, क्योंकि उन दिनों इंडिया की इमेज was not great. इंडिया was seen as a loser country. हमारे एक्सपोर्ट्स का बहुत बुरा रेपुटेशन थी। तो हम लोग जब जाते थे लोग पूछते थे आप हमें सॉफ्टवेयर बेचने आए हो, इंडिया में क्या करा है आपने? And we had to convince them based on talking to them, telling them कि तुम वो भूल जाओ, मुझसे पूछो कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, ये हमारी टीम है, ये 20 लोग के ये रेज्यूमेज हैं, अब आप बताइए इन रेज्यूमे में कोई कमी है कि नहीं है। हमने जो कंपनी बनाई थी, आई मेड इट फर्स्ट इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी to get international quality certification.
For the first 2 years, I spent 1/3 of my profits hiring a company in the UK to give me that certification. That certification was available from an Indian government entity. पर मैंने नहीं लिया because I knew कि abroad उसका कोई माने नहीं होगा उन दिनों. And then I was able to go and say when we were competing कि भाई look, I have international certification. जो मेरे competitors हैं, जो local companies हैं England में, they don't have certification. So it was not at all easy. We had to do that. We used to get together, many of our companies go together abroad, create a conference, call all foreign companies who were interested, समझाते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रेड फेयर्स अटेंड करते थे, शोज अटेंड करते थे. It was very hard to sell. So it was largely we succeeded only on the basis of delivering very high quality products, very high quality solutions. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन दिनों सिर्फ ये बात नहीं थी, उन दिनों ये भी प्रॉब्लम थी कि if I wanted to import a computer 2 साल लगते थे, 200% import duty थी. There was no telecommunication. अगर मैं बाहर ट्रैवल करूं तो मुझे सिर्फ $8 मिलते थे. So we still created a industry in those conditions. आज तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है. वंडरफुल. एक सवाल पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो आपने कुछ लोग मिलके एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सेटअप किया, वो आज इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाता है, मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब देता है, तो बट कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बिल्ड करने में पीछे रह जाते हैं. आज की तारीख में जब हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, ये कई दफे मैं सुनता हूँ, लोग समझते नहीं है. ये हमने जब इंडस्ट्री शुरू करी तो मैंने आपको सिचुएशन बताई, आप कंप्यूटर इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और कोई टेलीकॉम नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, $8 मिलेंगे आपको. नो फंडिंग, बैंक कोई लोन नहीं देता था, कोई एंजल से कोई वीसी फंड नहीं था, ठीक है. तो अगर आप कंपनी शुरू करते हो उस वक्त, तो आप कहाँ से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं? There was प्रोडक्ट सर्विसेज में जो हम लोग ने करा, उसमें यह था कि आप सर्विस करिए, अगले महीने आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा. आपको कैश फ्लो 1 महीने का चाहिए, प्रोडक्ट में आपको कैश फ्लो चाहिए 2 साल का. There was no money. That's one. Second, जहां आप जो इंडिया के बारे में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में लोग बोलते हैं, वो ये नहीं समझते कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं कहां से. अमेरिका के बाहर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किसी को नाम में आता है क्या? SAP को छोड़ करके, और वो इसलिए क्योंकि जर्मनी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको छोड़ करके all software products that you talk about are all from America, because they have the largest domestic market, जिसमें वो अपना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, and they have the best access to venture capital. इंडिया में we had no access to venture capital, zero domestic market, तो कोई चांस ही नहीं था प्रोडक्ट बनाने का. वो तो सर्विसेज मार्केट हमने बना ली. That itself was phenomenal. Secondly, प्रोडक्ट में क्या होता है? When you are building a product, you are building something which will be needed 3-4 years from now. क्योंकि अगर अभी उसकी जरूरत है तो वो तो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है. How can you sit in another part of the world and know कि अमेरिका में 3 साल बाद क्या जरूरत होगी? It's not possible. इसीलिए जिन लोग की लार्ज डोमेस्टिक मार्केट होती है, वो प्रोडक्ट अपनी मार्केट के लिए क्रिएट कर लेते हैं, फिर वही नीड बाहर चली जाती है. इंडिया में ना तो उस वक्त फाइनेंस था, ना डोमेस्टिक मार्केट थी, और ना ही हम लोग मैकेनाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड थे. तो हमारा एनवायरनमेंट वर्सेस दैट ऑफ अमेरिका वाज कंप्लीटली डिफरेंट. सो देयर वाज नो क्वेश्चन
And लोग ये कैसे भी हैं, तो I don't know why they don't understand today. One of the most valuable companies in the world is Accenture. Accenture ने कौन सा product बनाया? So there are successful product companies, there are successful technology service companies, there are successful consumer internet companies. अलग-अलग segments होते हैं. हमने एक segment choose करके we own 75% of global market share in one segment. No country has that dominance in any segment anywhere except for the US. Not France, not Germany, not UK, not Japan, and not China. किसी का नहीं.